Bengaluru-based the National Cooperative Bank merging into Cosmos Bank, all 13 branches operational for customer service from the 6th of January. Bengaluru, January 6, 2025. With the permission of Reserve Bank, all 13 branches of Bengaluru-based National Cooperative Bank will be operational for service as branches of Cosmos Cooperative Bank Limited, from January 6, 2025. These customers will now receive all the latest facilities and services of Cosmos Bank, stated CA Milind Kale. The National Cooperative Bank has total of 13 branches, out of which 12 are in Bengaluru and 1 is in Mysuru. The business setup of the National Cooperative Bank at the end of December 2024 is 1,326 crore rupees. Up till now, Cosmos Bank has merged 18 small cooperative banks. With this merger, the deposits of around 2,792 crore belonging to the depositors has gained security. With the merger of this Bengaluru-based bank, the Cosmos Bank's expansion in Karnataka state is going to be significant. Total of 17 branches in Karnataka, Cosmos Bank has also absorbed all the staff of erstwhile the National Cooperative Bank. CE Kale further stated that, with the voluntary merger of Cosmos Bank and the National Cooperative Bank, our bank has merged 19 small cooperative banks till date. Deposits of lakhs of depositors are secured. Cosmos Bank's financial foundation is very strong, having total business of more than 235,400 crore at the end of March 2024. The bank has earned net profit of more than 350 crore. The bank's share capital and own funds are more than 2,000 crore. With this merger, Cosmos Bank now has 183 branches across 7 states. Due to intense competition, it has become difficult for small banks to sustain. In this scenario, upholding the ethos of cooperative sector, Cosmos Bank has assisted many banks. This has ensured security to the depositors of cooperative banks. Bank's Chairman, ADV Prahlad Kokare, Vice Chairman, CE Yashwant Kasar, Directors of the Board and Managing Director Mrs. Apekshita Tipse, were present on this occasion. कॉस्मस बैंक ने आज नेशनल कोऑपरेटिव बैंक को डिपॉजिटर्स जिनकी डिपॉजिट तकलीफ में थी वो जिम्मेदारी उठाई है। इसको हम कहते हैं नेशनल कोऑपरेटिव, ये वीक बैंक का कॉस्मस ये स्ट्रॉन्ग बैंक में रिजर्व बैंक ने मर्जर कर दिया है। तो ये जो डिपॉजिटर का पैसा भुगतना था, वापस देना था, वो नेशनल की जिम्मेदारी अभी कॉस्मस ने उठाई है। न कि ये 800 करोड़ रुपए जो डिपॉजिटर का पैसा लागत इधर था वही जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन जो पहले डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक की उनकी पूंजी के ऊपर DICGC ने इंश्योरेंस ने उनको जो 5 लाख रुपया के हिसाब से 600 करोड़ रुपए दिए, वो भी जिम्मेदारी कॉस्मस ने उठाई है। कॉस्मस ऐसी वीक बैंकों की जिम्मेदारी उठा के उधर का टेक्नोलॉजी बदल के उधर का स्टाफ को ट्रेनिंग दे के एक अच्छा कोऑपरेटिव कल्चर ला के आगे बढ़ रही है। सर, रही बात बहुत से कोऑपरेटिव बैंक्स में आप भी मालूम कर रहे हैं कि धोखाधड़ी चल रही है करके, तो ये हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या किसको धोखाधड़ी कहते हैं? यानी कि कस्टमर्स अगर बैंक अच्छी चल रही है, 118 साल चल रही है, तो धोखाधड़ी का सवाल कहाँ है? समाज में कुछ लोग धोखाधड़ी करते हैं, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर धोखाधड़ी करते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। वी आर प्राउड कि हम 118 साल से लगातार अच्छा काम करते आए हैं, समाज की सेवा करते आए हैं। डिपॉजिटर का जो पैसा कॉस्मस में आता है वो अच्छी काम के लिए अच्छे रेट को दिया जाता है, अच्छी वसूली की जाती है और एक आदर्श बैंक चलाने का हमने काम आज तक 118 साल किया है। आपका नाम? मैं मिलिंद काले, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। नमस्कार, मैं आपका नमस्कार, मैं प्रवीण गांधी, डायरेक्टर कॉस्मस बैंक। इस वक्त हमारा बोर्ड जो है उसमें से 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 4 इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं और एजुकेशनिस्ट है। ये सारा बोर्ड जो है ये प्रोफेशनल बोर्ड है और आप देखते हैं तो कॉस्मस बैंक 118 साल पुरानी बैंक है और भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में ये 2 नंबर की बैंक है। आज 2 नंबर की बैंक कॉस्मस बैंक है और इसका कारण एक ही है कि सब एक दिल से काम करते हैं और सहकारिता क्षेत्र को बचाने की तरफ हमारा रुख रहता है। और ये विचार से हमने ये बैंक भी जो अभी टेक ओवर किया NCB, इसका कारण भी यही था कि अगर हम टेक ओवर करते हैं तो जितने भी छोटे छोटे डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा जो है वो पैसा बचे
और उनको पैसा विड्रॉ करने की मौका मिले, इसके लिए हमने ये बैंक जो टेक ओवर किया, नंबर 1। दूसरा कारण ऐसा था कि यहाँ हमको कर्नाटका में भी इच्छा थी कि हम यहाँ कैसे अपना बैंक बढ़ा सकते हैं। तो ये बैंक लेने से हमें 12 ब्रांचेस बेंगलुरु में और एक ब्रांच मैसूर में मिल गई है। वो हिसाब से हमारी सारी 13 ब्रांचेस इधर हो गई है। आज के तारीख में ये 13 ब्रांच पकड़ के कॉस्मोस बैंक की 183 ब्रांचेस हो गई है। और यहाँ पे देखिए अभी बहुत से क्या होता है करके बोले तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स करके वो तो फ्रॉड्स वो ये कर रहे हैं करके, तो इसके हिसाब से क्या कहना चाहिए आप? वही मैंने आपको जैसे बताया कि पूरा जो बोर्ड है, पूरा बोर्ड प्रोफेशनल बोर्ड है, व्यावसायिक बोर्ड है। इसके कारण ज़्यादा से हमारे यहाँ फ्रॉड होने का चिंता नहीं होता है। और जो अलग अलग कमिटीज़ है, अलग अलग कमिटीज़ से फाइनल कमिटी तक जब प्रपोजल जाते हैं उसमें बहुत सारे हम नुक्से जो है निकाल देते हैं और अच्छे प्रपोजल से उतना ही ऊपर तक जाते हैं। इसके लिए हमारी बैंक का अगर आप देखते हैं तो एनपीएस बहुत कम है, इट इज़ लेस देन 3.5% और नेट एनपीएस इज लेस देन 1.6%। ये जो अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट इसके लिए है कि सारा बोर्ड सक्षम है, प्रोफेशनल है। और हमारे चेयरमैन साहब जो रह चुके हैं मिस्टर मिलिंद काळे, वो इसके पीछे का एक्चुअली बुद्धि है, ब्रेन है, उनके गाइडेंस में हम आगे सारे काम कर रहे हैं। इसके लिए सहकारिता क्षेत्र में नैफकब में भी उनको वाइस चेयरमैन की पद दिया है और उनको चुना गया है वहाँ भी। और रही बात अब तो ये कहने के बाद अभी तक तो कैसे फैसिलिटी के हिसाब से कस्टमर्स का रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। कोई भी ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने को आता नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाकी 13 ब्रांचेस के रिपोर्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। बहुत सारे लोग KYC कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं। एक हाथ दूसरे को जो बड़े बूढ़े लोग हैं जिन्होंने कहाँ से बाहर से लोन लिया होगा, क्योंकि ये बैंक जो बंद थी तो उनको थोड़ी भी जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अब खुल गया बैंक, तो वो खाली लोग आते हैं तो हमारा ब्याज कितने, हमको ब्याज चाहिए। पैसा निकालने के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे का एक वीक में, एक सप्ताह में हमें एक आइडिया आ जाए कि यहाँ से कितना विड्रॉ हो जाएगा। हमारे हिसाब से 5% भी विड्रॉ नहीं हो सकता। और नए लोग डिपॉजिट करने पैसा आ रहे हैं, कैश लेके आ रहे हैं डिपॉजिट कर रहे हैं। अपना नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार गांधी, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं पहले GIC में था, GIC से रिटायर होकर बोर्ड ज्वाइन किया था लास्ट टाइम। वो मैंने 20 से 25 तभी हम चुन के आए थे। और इस बार तो हमारा तो विरोध है, सब लोग अपोज हम चुने गए हैं और आगे के 5 साल बैंक की सेवा में, सहकारिता सेवा में कार्य करने का मौका मिल रहा है, जिसके हमें बहुत बड़ी खुशी है। धन्यवाद।